Number 20. From the following particulars, calculate the sales required to earn a profit of rupees 1,20,000. Sales is 6 lakh, variable cost 3,75,000, fixed cost 1,80,000. You have required only one calculation you required, that is to find out profit. वो एक ही पूछा है आपसे, profit 1,20,000 के लिए कितना सेल्स होना चाहिए. अब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स भी नहीं दिया आपको, कितने सेल क्वांटिटी है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज नॉट गिवन. तो इस बार आपको पीवी रेशियो से जाना पड़ेगा. सो 37.5 इज व्हाट योर पीवी रेशियो. यस, देखिए यहाँ पर आपको डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, बट बिफोर दैट प्लीज फाइंड आउट योर पीवी रेशियो. सो पीवी रेशियो is equal to contribution upon sales into 100. What is the contribution? देखिए 6 लाख का आपका सेल है, 3,75,000 की वेरिएबल कॉस्ट है. It means your contribution is rupees 2,25,000 divided by your sales is 6 lakh into 100. That means it is your 37.5% is your PV ratio. Now, desired contribution, ये हमारा calculation A, B, desired contribution. Desired contribution. How you get the desired contribution? It is required profit. Please write down. मेरे साथ साथ में लिखना आप लोग. मैंने से पहले लिखा तो और भी better. Required profit is 1,20,000. अब हम इस टाइप के कई सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, इसलिए हर बार मुझको इन डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको आ जाना चाहिए. Required profit is 1,20,000 and fixed cost जो कि हमारी 1,80,000. Therefore, desired contribution is 3 lakh. Therefore, sales to earn profit rupees 1,20,000 equal to desired contribution upon PV ratio. So it is 3 lakh divided by 37.5%. कितना है? Rupees 8 lakh. This is what the final answer. Got it? Next. समझ में आ गया सबको? Number 21. From the following data, find out sales, new break-even sales if selling price reduced by 10%. Fixed cost 4,000, profit 1,000, break-even sales 20,000, selling price per unit is rupees 20. देखिए break-even sales आपको दिया हुआ है 20,000. Your selling price is rupees 20 है, fixed cost 4,000, profit is 1,000. What you have to find out is, इस स्टेज में आपको आपका सेल्स फाइंड आउट करना है. और न्यू ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%. अब आप देखिए आपका ब्रेक इवन सेल्स 20,000 है और आपकी फिक्स कॉस्ट 4,000 है. ब्रेक इवन सेल्स आपका 20,000 है और फिक्स कॉस्ट आपकी 4,000 है. इसका मतलब देखिए ब्रेक इवन सेल्स पर जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट है वही आपका कंट्रीब्यूशन है. सो आई कैन से my break even sales
20,000 less variable cost, therefore contribution. What is my contribution? Contribution equal to fixed cost. बराबर है. इसका मतलब my contribution is 4,000. इसका मतलब variable cost is 16,000. इसका मतलब ये हुआ, please do not write, just concentrate. Therefore, I can say my PV ratio is contribution upon sales into 100. So that is 4,000 by 20,000 into 100. That means it is 20% is my PV ratio. It means selling price कितनी हमारी? is rupees 20. Therefore, variable cost per unit is 20 का 80%, क्योंकि 20% contribution है ना, इसका तो 80% is my variable cost. So it is rupees 60. Is this clear? Then anyway, अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? ये हो गया हमारा बेसिक डेटा सर, ये हो गई हमारी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन. हमें क्या फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली प्रॉब्लम के अंदर? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दी सेल्स. अब आप देखिए सेल्स जो होता है, सेल्स आपको प्रॉब्लम में प्रॉफिट भी दिया हुआ है विच इज रुपीज 1,000. इसका मतलब है व्हाट इज योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन? इट इज 5,000. अरे भाई 4,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट के बाद ही तो प्रॉफिट मिलता है. इसका आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 5,000. सो हियर आई कैन से नंबर 1 मुझे फाइंड आउट करना है सेल्स. सो दैट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन is fixed cost 4,000 plus profit 1,000, that is 5,000. Therefore, sales equal to total contribution divided by what? PV ratio. Be confident. My contribution is 5,000 divided by 20% is equal to how much? 25,000. ये क्या हमारा सेल्स. उसमें अगला सवाल आपसे ये पूछा है, न्यू ब्रेक इवन सेल इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%. न्यू ब्रेक इवन सेल्स. नंबर 2, new break even sales if selling price reduced by 10 na reduced by 10%. So here I can say contribution per unit. कितना का contribution per unit? It is a selling price minus variable cost ना. आपकी selling price per unit कितनी है? 20. But that 20 is reduced by 10%. So 20 minus 10% is 18 minus variable cost 16. So what is the contribution per unit is 2. Now break even sales, break even point is equal to what? Fixed cost upon contribution per unit. My fixed cost is 4,000. Contribution per unit is 2. So it is 2,000 units. Clear? समझ में आ गया? Please write down. हाँ बोलिए. वेरिएबल कॉस्ट मतलब सेल्स कॉस्ट अगर 10% से कम हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं. सेलिंग प्राइस कम हो गई इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से कम हो गए, ऐसा थोड़ी होता है. मैंने किसी वजह से, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था,
let's say the cost of this pen is a 40, cost of this variable cost of this pen is 40 and my selling price is a 50. अब कंपटीशन की वजह से मैंने 50 की जगह इसको 10% डिस्काउंट से बेचना शुरू किया, मैंने 45 से बेचना शुरू किया, डज इट मीन दैट माय वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज? इसमें लगने वाला मटेरियल लेबर थोड़ी ना कम हुआ है, तो आज भी उतना ही है, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस कम हो गई मतलब वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं होती है। हो गया? चले आगे, क्लियर है सबको क्या करना है आपको? यस। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉब्लम में ना कभी कभार डायरेक्टली आंसर निकालने से बेटर होता है कि जो सिचुएशन आपको दी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, उसको पहले प्रॉपरली एनालाइज करके कुछ बेसिक वर्किंग्स हमेशा कर लेना। सो एक बार बेसिक वर्किंग हो गया, जैसे यहाँ पर आपको ये नहीं पूछा था कि व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये पूछा नहीं था, लेकिन ये हमने पहले फाइंड आउट करके रखा। दिस इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ द गिवन डेटा। एक बार ये इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, देन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। तो कभी एनालिसिस करना पड़ेगा, कभी डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, कब एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, ये कैसे समझेगा? प्रैक्टिस, वेरी करेक्ट, कीप ऑन प्रैक्टिस।
जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, नंबर ऑफ प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब आपको जजमेंट आएगा कि कहाँ पहले हमको थोड़ा सा एनालिसिस करके पहले लिखो, कुछ डेटा पहले खुद फाइंड आउट करके रखो एंड देन गो फॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज जितने क्लास के प्रॉब्लम्स हैं वो उसी दिन सॉल्व करो। एट द सेम टाइम मोमेंट चैप्टर इज ओवर और इट इज ऑलमोस्ट टू फिनिश, प्लीज स्टार्ट थ्रू योर स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल, तब का तब हो जाएगा फिर आपका ये।